discuss the energy. The next topic of your this chapter is energy. We have finished the work. Now let us discuss energy. Energy क्या होता है? It is the capacity of a body to do the work. या हम बोलेंगे ability of a body to do the work is called energy. ये एनर्जी हम कैसे मेजर करते हैं? हम मेजर करेंगे एक बॉडी कितना काम करेगी. This work can be done against the resistive forces. For example, if we take a body to a certain height above the ground, we have to do the work against the gravity. That work which we do against the gravity, that is stored in this body in the form of some kind of energy. Similarly, when a body moves along some straight line, this body has to perform the work against the friction, because the ground always exerts friction. So, while moving, we have to do the work against the friction. When we measure this work done, either against the gravity or against the friction or against some other resistive forces, that work done is equal to what? Energy. So energy is measured as the work done by or on the body. So energy and work, they are the same quantities, because energy is the ability of a body to do the work. एक बॉडी की एबिलिटी, एक बॉडी की कैपेसिटी टू डू द वर्क, दैट्स कॉल्ड एज एनर्जी. कैसे मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन. जब आप अमाउंट ऑफ वर्क डन मेजर करोगे, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू द टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच यू आर गोइंग टू कैलकुलेट. एनर्जी जो है, पहले एनर्जी हमारे पास दो किस्म की है. नंबर वन काइनेटिक एनर्जी, नंबर सेकंड पोटेंशियल एनर्जी. इनको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जीज. दे आर कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जीज. आज हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी, इसका एक्सप्रेशन और भी कुछ आगे, इसका एक और एक्सप्रेशन हम आज निकालेंगे. पहले हम काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करेंगे. काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा. Energy possessed by a body by virtue of its motion. सुना है ना आपने? Energy possessed by a body by virtue of its motion. That's called as kinetic energy. तो आप कहते हैं energy possessed by a body by virtue of its motion. Motion, that is called as what energy? Kinetic energy. Energy possessed by a body by virtue of its motion, उसको हम क्या कहते हैं? Kinetic energy. इसको हम कैसे मेजर करेंगे? जैसे बॉडी मोशन में होगी, बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, जो वर्क बॉडी करेगी अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स, दैट वर्क इज इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. मैंने आपको कहा एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. ये हम कैसे मेजर करेंगे? हम देखेंगे कि जब एक गाड़ी, जब एक बॉडी, जब एक पार्टिकल, जब एक पर्सन किसमें होगा? मोशन में. बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जो वो काम करेगा या जो उस पर काम किया जाएगा, दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी. इट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on the body before coming to the rest. Because when the body moves, some work is needed to be done against the friction, because friction doesn't allow the body to move. Therefore, to eliminate that friction, body has to perform work. To eliminate that friction, body has to perform work. ठीक है ना? वही वर्क जो हम करेंगे against the friction or against some other kinds of resistive forces, that energy, that work done gets stored in this body, in this moving body, in the form of energy, and that energy is called as kinetic energy. For example, a flowing water has a kinetic energy, because flowing water is in motion. A moving car has a kinetic energy. What is the kinetic energy? Because car is in motion.
Everybody which is in motion possesses some kind of energy, and that energy is called as kinetic energy. Today, let us derive the expression for this kinetic energy. Expression for kinetic energy. Expression for kinetic energy. Expression for kinetic energy. आज हम निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. आपने 9th क्लास में इसका एक एक्सप्रेशन पढ़ा है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. वही एक्सप्रेशन में आज यहां निकालूंगा. सपोज बेटा मेरे पास एक बॉडी है विच इज इनिशियली एट रेस्ट. ये बॉडी है. सपोज इस बॉडी की मास m है. दिस बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट. मैंने एक बॉडी ले ली. जो बॉडी है वो इनिशियली किस में है? रेस्ट में. तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u होगी वो क्या होगी? 0. m क्या है? शाबाश. m है बेटा मास ऑफ बॉडी. मास ऑफ बॉडी which is initially at rest. Initially at rest. मैंने एक बॉडी ले ली जिसका मास मैंने m लिया. जो बॉडी इनिशियली किस में है? रेस्ट में है. जब ये इनिशियली रेस्ट में है तो इसका u जो होगा इनिशियल वेलोसिटी दैट विल बी 0. सपोज बेटा इस बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई किया F. व्हाट इज F? फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. चूंकि बॉडी जो है वो मोशन में तब आएगी जब हम उस बॉडी पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स. चूंकि बॉडी जो है वो मोशन में तब आएगी जब हम उस बॉडी पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स. अदरवाइज द बॉडी डजंट कम इनटू द मोशन. बॉडी कम्स इनटू मोशन ओनली व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन इट. जब मैंने इसको फोर्स अप्लाई किया ये बॉडी किस में आई? मोशन में. सपोज ये यहां से चली. सपोज आफ्टर सम टाइम ये बॉडी जो है इसकी वेलोसिटी जो है वो v बन गई. पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी? 0. अब इसकी वेलोसिटी क्या बन गई? v. व्हाट इज दैट? F is the force applied on a body. F is the force applied on a body. What's v? v is the velocity attained by a body आफ्टर सम टाइम. बच्चों यहां देखो. पहले जो बॉडी थी इसकी वेलोसिटी 0 थी. क्योंकि बॉडी किस में थी? रेस्ट में. मैंने इस पे क्या लगाया बेटा? फोर्स. जब मैंने फोर्स लगाया बॉडी किस में आई? मोशन में. जब बॉडी मोशन में आई इसमें क्या पैदा होगी? वेलोसिटी. जब बॉडी मोशन में आ गई इसमें क्या पैदा होगी? वेलोसिटी. सपोज v जो है दिस इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ बॉडी आफ्टर सम टाइम. इस v को हम फाइनल वेलोसिटी भी कहते हैं. ठीक है. v इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी आफ्टर सम टाइम. देखो पहले क्या थी वेलोसिटी? 0. अब क्या है वेलोसिटी? इसका मतलब है बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी. जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होती है. क्योंकि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस विद टाइम वी से दैट बॉडी इज एक्सेलरेटेड. बॉडी इज एक्सेलरेटेड. एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन होती है जिस मोशन में बॉडी की वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी. सपोज जब ये बॉडी मूव कर रही है इसकी इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा होगी. वो किससे हम डिनोट करेंगे? ए से. ए इज इक्वल टू यूनिफॉर्म acceleration produced in a body. A क्या है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी. ठीक है. बॉडी रेस्ट में थी, वेलोसिटी 0 थी, फोर्स हमने दे दिया, इसकी वेलोसिटी v बन गई. जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी इस बॉडी में क्या पैदा होगी? एक्सेलरेशन. हमें किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है? हम कैसे एक्सप्रेशन निकालेंगे? हम निकालेंगे वर्क डन. हम क्या निकालेंगे? वर्क डन. जो इस बॉडी पे हमने किया in order to change its velocity, in order to increase its velocity,
फ्रॉम u इज इक्वल टू 0 टू v। चूंकि मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम मेजर करेंगे वर्क डन बाय द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, यहां पर भी पहले वेलोसिटी कितनी थी 0, अब क्या है v। हम निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम 0 टू v। दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। वो वर्क हम कैसे निकालेंगे आप देखो। सपोज ds is the small displacement produced in a body by this force, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया जिस डायरेक्शन में मैंने क्या अप्लाई किया, फोर्स। ठीक है ना, मैं ऐसे बताऊंगा ds is equal to small displacement produced in a body in the direction of force. ds is equal to small displacement produced in a body in the direction of force, या हम लिखेंगे in the direction of motion। बेटा जब मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी किस में आई, मोशन में, तो ये बॉडी जो है ये चलेगी, जब ये चलेगी ये कवर करेगी डिस्प्लेसमेंट। सपोज ds जो है दिस इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल क्यों लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा हमारा जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, अदरवाइज दिस फोर्स कैन बी वेरिएबल। ठीक है ना, जो कांस्टेंट फोर्स है उसके लिए जो वर्क डन का फार्मूला है दैट इज W इज इक्वल टू F डॉट ds या F डॉट s। जो वेरिएबल फोर्स है उसके लिए W का एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ r1 टू r2 F डॉट dr। हम यहां बोलेंगे कि सपोज ds is the small amount of displacement produced in a body in the direction of force। जहां से फोर्स है वहीं से बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ds। dw is the small amount of work done, small amount of work done on the body। dw जो है वो small amount of work done in the body हो गया in moving the body through a displacement ds। जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा आपका जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन dw होगा हमारा बराबर F डॉट ds। वेरी नाइस, dw किसके बराबर होगा, F डॉट ds। ठीक है, dw इज इक्वल टू F डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट को खत्म करो, दिस इज dw इज इक्वल टू F ds cos ऑफ थीटा। dw is equal to F ds cos of theta। थीटा जो है वो F और ds के दरमियान क्या है, एंगल। यहां पर जो आपका थीटा होगा वो क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर इन द सेम डायरेक्शन। हियर थीटा इज इक्वल टू 0। व्हाई थीटा इज इक्वल टू 0, बिकॉज F एंड ds आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। यहां पर आपका थीटा जो होगा वो होगा 0 बिकॉज F एंड ds आर इन द सेम डायरेक्शन। देयरफॉर dw इज इक्वल टू F, बोलो F ds, थीटा के बदले क्या लिखूंगा 0, ये हो गया cos 0। तो आपका dw जो है वो निकलेगा F ds, क्योंकि cos 0 किसके बराबर है, 1। cos 0 किसके बराबर है, 1। यहां तक बात समझ आई। मुझे निकालना है वो एक्सप्रेशन 1/2 mv स्क्वायर। इसका मतलब है मुझे ये डिस्टेंस और फोर्स जो है ना ये मुझे एलिमिनेट करना है। आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma। एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, एज पर न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां नजर रखो बेटा, x क्या है, फर्ज करो डिस्प्लेसमेंट, dx by dt यह होगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। dx by dt क्या हो गया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या हम इसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर
टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो होता है वेलोसिटी के बराबर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर। इसी तरह बेटा एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसको हम ऐसे लिखते हैं dv/dt। हम ऐसे पढ़ेंगे, जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, चूंकि इसका पावर क्या है 1, अगर इसका पावर d का पावर 2 होता तब हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। यहां पर क्यों हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि d का पावर क्या है 1। इस एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है dv/dt। इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी होता है फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी तरीके से जो एक्सेलरेशन है वो है फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पर लिखूंगा मैं, बट a इज इक्वल टू dv/dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो f किसके बराबर बनेगा बच्चों? फिर f बनेगा m इंटू a के बदले क्या लिखोगे? शाबाश, dv/dt। f इज इक्वल टू m dv/dt। f का वैल्यू जो है वो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। Therefore फर्स्ट बिकम्स, बोलो बेटा क्या बनेगा फर्स्ट? शाबाश, फर्स्ट बिकम्स dw इज इक्वल टू f के बदले m इंटू dv/dt इंटू ds। f इज इक्वल टू m dv/dt इंटू ds। dw इज इक्वल टू शाबाश m dv, ठीक है, इंटू ds/dt। ऐसे लिखेंगे m dv इंटू यहां पर क्या है ds, डिवाइड पे क्या लिखेंगे dt। s जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैंने कहा यहां पर मैंने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया था x, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट s दूंगा तो ds/dt भी किसके बराबर है? v के बराबर। तो मैं लिखूंगा यहां पर, बट ds/dt इज इक्वल टू v, वेलोसिटी। ds/dt इज इक्वल टू v, व्हाट इज v? वेलोसिटी। तो क्या बनेगा dw? बता बेटा, dw बनेगा आपका शाबाश m dv इंटू v। हम ऐसे लिखेंगे dw इज इक्वल टू mv dv। इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। बेटा f इज इक्वल टू ma, a किसके बराबर है? dv/dt। तो f हो गया m इंटू dv/dt। अब f का वैल्यू दे दिया फर्स्ट इक्वेशन में, आपका dw आ गया m इंटू dv/dt इंटू ds। हमने ये लिखा m इंटू dv इंटू ds/dt, मगर ये जो ds/dt है ये वेलोसिटी है, s तो डिस्प्लेसमेंट है, ds/dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो ये बन गया ds/dt इज इक्वल टू v। यहां पर एक्सप्रेशन दे दिया dw इज इक्वल टू m dv इंटू v। v को यहां लिखा तो ये बन गया dw इज इक्वल टू mv dv। ये मैंने क्या किया? ये मैंने किया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस ds। मुझे क्या निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम 0 टू v। वो हम कैसे निकालेंगे? जब हम इस इक्वेशन सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू v। क्योंकि पहले क्या है वेलोसिटी का वैल्यू, अब क्या है वेलोसिटी का वैल्यू? हम लिखेंगे total amount of work done, total amount of work done in increasing the velocity of body, in increasing the velocity of body from 0 to v. Total amount of work done in increasing the velocity of body from 0 to v is obtained by integrating equation second between limits 0 to v। बेटा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें कैसे निकलेगा? जब हम इस इक्वेशन सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन लिमिट्स 0 टू v। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है v। तो देयरफॉर वी हैव, बेटा देखो हमें क्या निकलेगा? वी हैव, यहां देखो इंटीग्रेशन ऑफ dw, लिमिट उस साइड में देंगे जिस साइड में वेलोसिटी है। वेलोसिटी हमारी RHS में है। देखो dw किसके बराबर है? mv dv।
डी डब्ल्यू वाले साइड में नहीं देंगे लिमिट, लिमिट देंगे हम उस किस साइड में, जिस साइड में v है। तो ये बनेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू v, यहां देखो एम वी डी वी, इसको इंटीग्रेशन किया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू v एम वी डी वी। m जो है वो कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे। इंटीग्रल से क्या निकालेंगे? बाहर। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकाल के आपको बच्चों क्या आएगा? यह आएगा इससे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू m इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू v v डी वी। ठीक है बच्चा, इस v का पावर क्या है? 1, खुद लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ये पता है ये किसके बराबर होता है? w। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज x, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या होता है? w। ये बनेगा m, जब हम इस v की इंटीग्रेशन करेंगे ये बनेगा v रेज टू पावर 1 प्लस 1, चूंकि इंटीग्रेशन में पावर होता है इंक्रीज बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बिटवीन लिमिट्स 0 टू v। ये आएगा बेटा w इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बिटवीन लिमिट्स शाबाश 0 टू v। 2 को बाहर लेंगे, w हो गया बराबर 1/2m, ठीक है ना? 2 को बाहर लेंगे, ब्रैकेट में क्या रहेगा? v स्क्वायर बिटवीन लिमिट्स 0 टू v। अब लिमिट दे दो बेटा इसका, ये क्या बनेगा शाबाश? ये बनेगा w इज इक्वल टू 1/2m शाबाश v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। w इज इक्वल टू 1/2m v स्क्वायर, ठीक है? मगर जो ये W मैंने किया, मैंने बताया था दिस W विल अपीयर इन दिस बॉडी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? बट W इज इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या बनेगी ये इक्वेशन? आपको बन गई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। फिर से देखो मैंने क्या किया, एक मिनट में रिवाइज। एक बॉडी मैंने ले ली, जो बॉडी इनिशियली किस में थी? रेस्ट में, उसकी वेलोसिटी जो थी वो थी 0। इस बॉडी पे मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स। जब ये उस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये बॉडी किस में आई? मोशन में। सपोज आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी क्या बन गई? v। चूंकि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मतलब है बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा हो गई। उस एक्सेलरेशन को किसके बराबर रखा मैंने? a के बराबर। सपोज ds जो है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है जो इस बॉडी ने ट्रेवल किया इन स्मॉल टाइम। dw मैंने लिया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो dw किसके बराबर है? f डॉट ds, है ना? तो dw हो गया f ds cos थीटा। चूंकि f और ds एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो गया, तो यहां dw किसके बराबर निकला? f ds। नाउ एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, f किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन। मगर एक्सेलरेशन किसके बराबर? तो f किसके बराबर हो गया? m dv बाय dt। इसको दिया इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपका निकला dw इज इक्वल टू m dv बाई dt इंटू ds। मैंने क्या लिखा? मैंने ऐसे लिखा था, ये मैंने लिखा था ऐसे dw इज इक्वल टू m इंटू dv इंटू ds बाई dt। ये dt जो है ये ds का डिनोमिनेटर बना, मगर ds बाई dt किसके बराबर है? वेलोसिटी के बराबर। तो आपको ऐसे मिला फिर dw इज इक्वल टू m dv इंटू v। आपने इसको ऐसे लिखा mv dv। उसके बाद आपने टोटल वर्क डन निकालना है। वो कैसे निकालोगे आप? जब आप इस इक्वेशन को क्या करोगे? इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू v। तो मैंने किया dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू v mv dv। m को बाहर लिया, ठीक है ना? v की इंटीग्रेशन क्या होती है? शाबाश, v रेज टू पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। लिमिट दे दिए तो आपको निकला w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। मगर ये जो काम है ये इस बॉडी में अपीयर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसके लिए जो एक्सप्रेशन आपका निकला वो क्या निकला? 1/2 mv स्क्वायर। सो वी गेट एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। कुछ पॉइंट्स यहां पर जरूरी है। नंबर 1 देखो बच्चों, आपको निकला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यहां देखो मेरी तरफ, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ए बॉडी।
heavier the body, greater will be its kinetic energy. दूसरा, kinetic energy जो है, it is directly proportional to the square of the velocity of a body. Square of the velocity of a body. Kinetic energy is directly proportional to the square of the velocity of a body. इसका मतलब है body moving faster will have greater velocity and hence greater kinetic energy. A heavier body moving faster has a greater kinetic energy than a lighter body moving slower. Lighter body की जो mass होती है वो कम होती है. Slower means body is moving with a small velocity. When the body is moving with a small velocity, its kinetic energy will be small. अब यहां पर जो एक important point है वो है ये, बेटा आपका जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव. वेलोसिटी जो हमारी है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो. मगर यहां पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक यहां जरूर रखना याद, काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलवेज पॉजिटिव. जीरो भी हो सकती है लेकिन हमेशा क्या होगी है, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव. अब ऐसे लिखो, काइनेटिक एनर्जी कैन बी जीरो एज वेल एज पॉजिटिव, बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव. जब भी आप सुनोगे कहीं पर काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, आप लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल. इट इज इम्पॉसिबल. Particle cannot exist there where kinetic energy is negative. Body cannot exist there where kinetic energy is negative. यहां देखो बेटा क्यों. Kinetic energy जो है, it depends upon two things: mass and square of the velocity. Body की जो mass होती है, वो कभी नहीं नेगेटिव होती है. बॉडी की मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, बिकॉज मास इज द मेजर ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी. मास जो होता है बॉडी का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट कैन नेवर बी नेगेटिव. अब देखो बेटा यहां पर, चलो ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल इस जब ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा. अब अगर ये वेलोसिटी नेगेटिव होगी, इसका स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव. तो काइनेटिक एनर्जी क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज इट इज मास. मास इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. वेदर द वेलोसिटी इज नेगेटिव और द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब कोई बोलेगा आपको व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव पॉजिटिव, व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, व्हाई इट इज नॉट नेगेटिव. आप बोलेंगे उसको दो रीजंस है. एक रीजन है मास कैन नेवर बी नेगेटिव. दूसरा है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी. स्क्वायर ऑफ ए क्वांटिटी इज व्हाट क्वांटिटी? पॉजिटिव. Square of a negative quantity is what? Positive quantity. Square of a positive quantity is what? Positive quantity. So kinetic energy is positive because it depends upon the mass and the square of the velocity. This completes this question. Let's move forward. Relation between kinetic energy and momentum. Relation between kinetic energy and linear momentum. Don't talk. Relation between kinetic energy and linear momentum. Please see here. Relation between kinetic energy and linear momentum. हम पढ़ेंगे आज relation between kinetic energy and linear momentum. बच्चों आपने देखा होगा linear momentum जो होता है वो आपने 9th क्लास में सुना है. That is the product of mass and velocity. The product of mass and velocity of a body is called linear momentum. Basically, it is the total quantity of motion contained in a body. जो linear momentum है, it is basically the total quantity of motion contained in a body. इसको हम measure करते हैं product of mass and velocity of a body. वो जब भी आपको आएगा mass और velocity का product, आप कहेंगे ये है body का क्या? Linear momentum. इस लीनियर मोमेंटम को आमतौर हम P से डिनोट करते हैं. देखो कैसे हम रिलेशन निकालेंगे. अभी आपने निकाली रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. यहां रखो नजर. सपोज काइनेटिक एनर्जी को हम E से डिनोट करेंगे. किससे डिनोट करेंगे? लेट अस सपोज किससे? E से. तो E किसके बराबर होगा? 1/2 mv स्क्वायर.
काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 1/2 mv²। इस काइनेटिक एनर्जी को मैंने किससे डिनोट किया? E से। तो E किसके बराबर है? 1/2 mv²। आपने सुना होगा जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहां पर नहीं है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यहां है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। यहां देखो हम क्या करेंगे, इधर देखो बच्चों, हम ऐसे करेंगे, यह है 1/2 mv², इसको मल्टीप्लाई भी m से करेंगे, डिवाइड भी m से करेंगे। क्या किया मैंने? RHS को मैंने मल्टीप्लाई भी m से किया, डिवाइड भी m से किया। यहां देखो, ये बनेगा E इज इक्वल टू 1/2 m इंटू m, क्या हो गया? m²। साथ क्या है? v²। डिवाइड क्या है? m। हम इसको ऐसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू mv का स्क्वायर, कोई फर्क? mv का स्क्वायर हो गया m² v² इंटू क्या है? 1, दैट इज mv होल स्क्वायर। तो हमने ऐसे लिखा mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। बेटा यहां देखो, m को भी स्क्वायर, v को भी स्क्वायर, मैंने लिखा mv का होल स्क्वायर। दिस इज E इज इक्वल टू mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। बट mv इज इक्वल टू p, व्हाट इज p? लीनियर मोमेंटम। mv इज इक्वल टू p, व्हाट इज p? लीनियर मोमेंटम। देयरफॉर जो आपका E है, E बन गया आपका p² डिवाइडेड बाय 2m। p² डिवाइडेड बाय 2m। This is the required relation between kinetic energy and linear momentum. बताते नहीं हो? Important relation between kinetic energy and linear momentum. बात समझ आया यहाँ पर? बात समझ आई यहाँ पर? क्या निकला आपको ये? This is the relation between kinetic energy and linear momentum. यहाँ देखो कैसे किया? Kinetic energy is 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी को किससे डिनोट किया? E के साथ। E किसके बराबर निकला? 1/2 mv²। तो E हो गया 1/2 mv²। इसको मल्टीप्लाई भी m से किया, डिवाइड भी m से किया, ठीक है? ये बन गया E इज इक्वल टू 1/2 m इंटू m, क्या हो गया? m² v² डिवाइडेड बाय m। ये बन गया E इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय 2m। बट mv किसके बराबर है? P के बराबर। तो आपको निकला E इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इन फिजिक्स। हम इसको किसी दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। P का वैल्यू निकालेंगे, जरा कैसे निकालोगे? p² इज इक्वल टू 2me, ठीक है बच्चों? उसका मतलब है P इज इक्वल टू √2me। ये है दूसरी रिलेशन। P इज इक्वल टू √2me। P इज इक्वल टू √2mv। ये रिलेशन हमें दिखाती है विदाउट लीनियर मोमेंटम kinetic energy cannot exist. क्योंकि kinetic energy always exists when there is what? Linear momentum. Linear momentum cannot exist without kinetic energy. समझ आया? यहां पर हम थोड़ा सा एक चीज डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, आपको है E इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m। अगर एक बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, क्या होगा? कांस्टेंट, यानी हर जगह लीनियर मोमेंटम सेम होगा। इफ P इज कांस्टेंट, यानी अगर लीनियर मोमेंटम बॉडी का क्या होगा? अगर कांस्टेंट होगा, देन जो आपका E है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। अगर यहां कंडीशन है, अगर बॉडी का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, उस सूरत में जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। उस सूरत में अगर बॉडी की मास इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहां से लेंगे बेटा m, यहां से लेंगे हम E। व्हाट इज E? काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज m? मास। जब मास बहुत कम होगा, देखो जब मास 0 होगा, यह ऑरिजिन है, यहां पर क्या है? मास। जब मास 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी होगी, है ना? E जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/m। जब m जो है, जब m 0 होगा, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी।
तो यहां पर इस साइड में हमें किसके वैल्यू है, किसके वैल्यू है, E के वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू। इस साइड में किसके वैल्यू है, मास के वैल्यू। तो एट जीरो व्हेन m इज इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी होगा, यहां पर होगा, है ना, बहुत ऊपर। जब हम ये मास इंक्रीज करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। तो ये कर्व ऐसे आएगा, दिस द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ क्या दिखाता है, देखो, जैसे हम मास को बढ़ाते हैं, ये कर्व जो है ये नीचे चला जाता है, नीचे चला जाता है। इसका मतलब है जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। If linear momentum is constant, the kinetic energy decreases on increasing the mass. So we can have this type of curve. This completes this question.